इनकम टैक्स। सेकंड जो हमने किया था, सेकंड वाज एक्साइज, थर्ड सर्विस टैक्स एंड फोर्थ सेल्स टैक्स। We discussed for income tax, we discussed for excise, we discussed for service tax and we discussed for sale tax in India. अब इनकम टैक्स में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था कि what are the conditions on the basis of which income tax is applicable. What are the basic conditions? Basic conditions we checked for income tax was that first condition for income tax is that there must be a total income. There must be a total income. This total income must be earned by a person. This total income must be earned by a person and this total income must be earned in the previous year. Therefore, if these three conditions are satisfied, then income tax is applicable. That is, there must be a total income. This total income must be earned by a person and this total income must be earned in the previous year. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इनकम टैक्स लग जाएगा. Now we have read for excise also. Excise के लिए the conditions were, first condition, there must be excisable goods. There must be excisable goods. First condition. Second condition, these goods must be manufactured. Third condition, these must be manufactured in India. Therefore, if these three conditions are satisfied, then excise duty is applicable. There must be excisable goods. These excisable goods must be manufactured and these excisable goods must be manufactured in India. Then excise duty is applicable. We discussed for sale tax also. Sale tax के लिए हमने डिस्कस किया था, first condition, there must be goods. Second condition, these goods must be sold and these goods must be sold in India. If these three conditions are satisfied, then sales tax is also applicable. Therefore, हमने डिस्कस किया था इनकम टैक्स के बारे में, एक्साइज के बारे में एंड सेल्स टैक्स के बारे में. इनकी कंडीशंस डिस्कस की थी. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये पर्टिकुलर टैक्स अप्लाई हो जाएगा. हम इनको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में चेक करते हैं. हमने जो एग्जाम्पल लिया था लास्ट क्लास में, मैन्युफैक्चरर का लिया था. लेट सपोज दिस इज अ मैन्युफैक्चरर एंड LG इलेक्ट्रॉनिक्स इज द मैन्युफैक्चरर. अब LG इलेक्ट्रॉनिक ने अपनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल खरीदा था, उसने अदर कॉस्ट करी थी कुछ, और इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके इसने AC मैन्युफैक्चर कर दिया था. और AC मैन्युफैक्चर करके इस मैन्युफैक्चरर ने उस AC को होलसेलर को सेल किया था, In turn, this wholesaler has sold this AC to a retailer, and in turn this retailer has sold this AC to a consumer. Therefore,
manufacturer is LG Electronics. It is manufacturing an AC by using raw material and other cost, and after manufacturing it, it is selling it to wholesaler, then wholesaler to retailer, then retailer to consumer. This is the series by way of which we get the product. We are directly not purchasing from manufacturer, we are purchasing it from retailer only. We are purchasing it from retailer only. Let us quantify all these facts. Let us suppose this raw material has been purchased by LG manufacturer for rupees 5,000, and other cost comes out to rupees 10,000. Therefore, total cost of production comes out to rupees 15,000. This LG has sold this AC for rupees 25,000, and wholesaler is selling this AC for rupees 40,000, and retailer is selling this AC for rupees 50,000. Now, this LG manufacturer has earned a profit of rupees 10,000. How 10,000 came? 25,000 is the sale price, 15,000 is the cost of production. Therefore, profit comes out to rupees 10,000. Now, these are the facts of the case. AC मैन्युफैक्चर करके 25,000 का सेल किया होलसेलर को, होलसेलर ने सेल किया 40,000 का, रिटेलर ने सेल किया 50,000 का. Now we need to see what all types of taxes are applicable in this transaction. What all types of taxes are there in this transaction, and we have to limit our discussion for income tax. We have to limit our discussion for excise as well as sale tax. Therefore, we have to give the answer relating to income tax, excise and sales tax only. So, let us see whether excise duty is applicable on this or not. Let us see this first aspect, whether excise duty is applicable on this or not. Suppose LG is manufacturing AC, it has to see whether excise duty is applicable. So, for the purpose of applicability of excise duty, we need to see what are the important conditions for the purpose of levy of excise duty. The important conditions being, first condition is excisable goods, second condition is manufactured, and third condition is India. If these three conditions are satisfied, then excise duty is applicable. So, let us see whether these three conditions are satisfied in case of manufacturer, that is LG Electronics, or not. Suppose we are seeing first condition. First condition is excisable goods, whether LG is manufacturing excisable goods or not. Now, AC goods है. Goods क्या होते हैं? जो movable होते हैं and marketable होते हैं. Therefore, AC movable है तो AC goods है. और what is the distinction between goods and excisable goods? Goods तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनके ऊपर गवर्नमेंट की इंटेंशन है टैक्स लगाने की, उनको हम एक्साइजेबल गुड्स बोलते हैं. देयरफॉर AC एक एक्साइजेबल गुड्स है बिकॉज इसके ऊपर गवर्नमेंट की इंटेंशन है टैक्स लगाने की. देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन केस ऑफ LG इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज ये AC एक्साइजेबल गुड्स है. नाउ वी नीड टू सी सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन इज मैन्युफैक्चर्ड. क्या ये AC मैन्युफैक्चर किया है या नहीं? नाउ वी नीड टू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मैन्युफैक्चर. मैन्युफैक्चर का मतलब होता है व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. देयरफॉर when this AC is considered to be a new product, तो इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. नाउ रॉ मटेरियल खरीदा. रॉ मटेरियल में क्या खरीदा इसने? रॉ मटेरियल में इसने कंप्रेशर खरीदा, रॉ मटेरियल में इसने फैन खरीदा, रॉ मटेरियल में इसने प्लास्टिक खरीदी, अदर कॉस्ट में इसने लेबर कॉस्ट करी और ओवरहेड्स के कई सारे खर्चे हुए. इन सबको मिलाकर इसने एक AC मैन्युफैक्चर कर दिया. नाउ दिस AC is considered to be a new product in the market, therefore it is a manufactured product. Therefore, second condition is also satisfied. Now we need to see about the third condition, that is whether this AC is being manufactured in India or not. अब LG Electronics की फैक्ट्री इंडिया में है, therefore this third condition is also satisfied. Therefore all these three conditions are satisfied. ये AC एक्साइजेबल गुड्स भी है,
ये एसी एलजी ने मैन्युफैक्चर भी किया है और ये एसी एलजी ने मैन्युफैक्चर इंडिया में भी किया है। देयरफॉर व्हेन ऑल दीज थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन एक्साइज ड्यूटी इज एप्लीकेबल। अब लेट सपोज द रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज 10%। लेट सपोज द रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज 10%, तो 10% की एक्साइज ड्यूटी 25,000 रुपीज पर लग जाएगी। नाउ इट कम्स आउट टू रुपीज 2500। नाउ इट कम्स आउट टू रुपीज 2500। अब ये एक्साइज ड्यूटी लगी क्यों? क्योंकि हमने इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन चेक करी और ये सेटिस्फाई हो गई और हमने एक्साइज ड्यूटी लगा दी। नाउ वी नीड टू सी वेदर दिस होलसेलर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे एक्साइज ड्यूटी और नॉट। क्या होलसेलर पर भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? अब होलसेलर के ऊपर भी वी नीड टू सी दीज थ्री कंडीशंस। अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी, नहीं तो ये एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। अब बताओ, ये एसी जो होलसेलर ने सेल किया रिटेलर को, क्या ये एसी एक्साइजेबल गुड्स है? यस, ये एसी एक्साइजेबल गुड्स है। अभी हम मान के चलते हैं एक्साइजेबल गुड्स मींस गुड्स ओनली। अभी हम ये मान के चलते हैं एक बार, गुड्स होते हैं मूवेबल, देयरफॉर ये एसी मूवेबल है, इसलिए ये एसी एक्साइजेबल है। नाउ वी नीड टू सी वेदर दिस एसी इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस होलसेलर और नॉट। क्या ये एसी इस होलसेलर ने मैन्युफैक्चर किया है? ये एसी इस होलसेलर ने मैन्युफैक्चर नहीं किया, therefore second condition is not satisfied, therefore excise duty is not applicable. Therefore what we have to do, we have to fulfill the important conditions only, and these conditions must be fulfilled cumulatively. That is, all these three conditions must be satisfied in order to levy any tax. अब हम देखते हैं क्या ये रिटेलर एक्साइज ड्यूटी लगाएगा या नहीं लगाएगा। ये रिटेलर भी एक्साइज ड्यूटी लगाएगा या नहीं लगाएगा? हाँ जी बताओ आप सब, क्या ये रिटेलर भी एक्साइज ड्यूटी लगाएगा? ये रिटेलर भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि इस रिटेलर ने इस एसी को मैन्युफैक्चर नहीं किया। देयरफॉर व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू सी द इंपॉर्टेंट कंडीशन। नाउ वी कम आउट टू सेकंड टैक्स, that is sales tax. Now we have to see whether in this case sales tax is applicable or not. क्या एसी के मैन्युफैक्चरर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल टैक्स लगाना है या नहीं लगाना? अब सबसे पहले किसी भी टैक्स के लगने के लिए वी हैव टू सी द इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब ये इंपॉर्टेंट कंडीशन सेल्स टैक्स की क्या है? ये सेल्स टैक्स की इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज गुड्स होने चाहिए। क्या ये एसी गुड्स है? क्या ये एसी गुड्स है? यस, ये एसी गुड्स है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, क्या ये एसी सेल हुआ या नहीं हुआ? यस, ये एसी सेल हुआ है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस एसी को होलसेलर को सेल किया है, इसलिए इसके ऊपर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। क्या ये एसी इंडिया में सेल हुआ है? यस, ये एसी इंडिया में सेल हुआ है, इसलिए थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसलिए सेल टैक्स मैन्युफैक्चरर को देना पड़ेगा, बिकॉज ऑल दीज कंडीशंस ऑफ सेल टैक्स आर सेटिस्फाइड। अब ये सेल टैक्स का रेट लेट सपोज इज 10%, देयरफॉर ये सेल टैक्स कितनी वैल्यू पे लगाएगा? सेल टैक्स लगता है वैल्यू प्लस एक्साइज ड्यूटी, इन दोनों को ऐड करके 27,500 पे ये 2750 का सेल टैक्स भी लगा देगा, और कंप्लीट बिल जो होलसेलर को देगा वो बिल देगा 30,250 रुपीज़ का, ये बिल देगा। अब इस बिल पे इसने एक्साइज ड्यूटी भी लगा दी। क्यों लगाई एक्साइज ड्यूटी? बिकॉज द इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ एक्साइज ड्यूटी आर सेटिस्फाइड। इसने सेल टैक्स भी लगा दिया। अब सेल टैक्स क्यों लगाया? क्योंकि इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ सेल टैक्स इज आर सेटिस्फाइड। देयरफॉर दोनों टैक्स अप्लाई हो गए, क्योंकि दोनों की इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और 30,250 का बिल इसने होलसेलर को दे दिया। नाउ ये होलसेलर इस मैन्युफैक्चरर को कितने रुपए देगा? होलसेलर वेदर ही विल पे 25,000 टू द मैन्युफैक्चरर और ही विल पे 30,250 टू द मैन्युफैक्चरर। नाउ ये 30,250 देगा मैन्युफैक्चरर को। क्या ये मैन्युफैक्चरर सारे पैसे अपने पास रख लेगा या कुछ गवर्नमेंट को भी डिपॉजिट करवाएगा? यस, ये मैन्युफैक्चरर 2500 सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा एक्साइज ड्यूटी का, और सेल टैक्स 27,500 का सेल्स टैक्स वालों को डिपॉजिट करा देगा, और 25,000 ये अपने पास रख लेगा। इसका मतलब इन दिस केस होलसेलर हैज पेड ₹30,250 and out of these 30,250
LG Electronics has paid excise duty to the excise department and sales tax to the sales tax department. Therefore, in the complete situation, who is paying the tax to the government? It is the LG Electronics who is paying the tax to the government. LG Electronics गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, लेकिन क्या इस टैक्स का बर्डन LG Electronics पे पड़ रहा है या इस टैक्स का बर्डन होलसेलर पर पड़ रहा है? इस टैक्स का बर्डन होलसेलर पर पड़ रहा है। इस टैक्स का बर्डन होलसेलर पर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि होलसेलर 30,250 मैन्युफैक्चरर को दे देता है एंड इन टर्न आउट ऑफ दीज 30,250 मैन्युफैक्चरर 2,500 एक्साइज वालों को डिपॉजिट कराता है और 2,750 सेल टैक्स वालों को डिपॉजिट कराता है। देयरफॉर एक्साइज ड्यूटी इज बीइंग पेड बाय एलजी and it is being borne by wholesaler, therefore it is a type of indirect tax. Indirect tax means जब टैक्स पे करने वाला कोई और होता है एंड टैक्स बर्डन जिसके ऊपर पड़ता है वो कोई और होता है, तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। Therefore whether we can say that excise duty is an indirect tax or not, yes, excise duty is an indirect tax because it is being paid by manufacturer LG and it is being collected from the wholesaler. Therefore after collecting from wholesaler, this amount is being deposited to the government. Therefore excise duty is a form of indirect tax. In the same way sales tax is also a form of indirect tax. Now इसने 30,250 पे कर दिए wholesaler ने. We have to see whether wholesaler is also required to pay sales tax in this case or not. क्या wholesaler भी sales tax पे करेगा इस केस में या नहीं करेगा? अब अगर होलसेलर ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो सेल टैक्स पे होएगा। अगर इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो सेल टैक्स पे नहीं होएगा। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्या ये गुड्स हैं? यस, दीज आर गुड्स। क्या ये गुड्स होलसेलर ने सेल किए हैं? यस, ये गुड्स होलसेलर ने सेल किए हैं। क्या ये गुड्स होलसेलर ने इंडिया में सेल किए हैं? यस, ये गुड्स होलसेलर ने इंडिया में सेल किए हैं। इसलिए व्हेन ऑल दीज थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन सेल टैक्स इज एप्लीकेबल। Rate of sales tax being 10%, 4,000 is required to be applied by the wholesaler. Total amount comes to rupees 44,000 rupees. अब ये रिटेलर जो पेमेंट करेगा इस होलसेलर को, वो कितने रुपए की पेमेंट करेगा? रिटेलर पे करेगा 44,000 रुपीज को एंड 44,000 क्या ये होलसेलर अपने पास रख लेगा सारे पैसे? नहीं, ये 44,000 होलसेलर अपने पास नहीं रखेगा सारे पैसे। Out of these 44,000 rupees, wholesaler will pay 4,000 rupees to the sales tax department. अब sales tax is an indirect tax, therefore it is being paid by wholesaler, it is being collected from the retailer. ठीक है, अब इसने सेल टैक्स क्यों लगाया? क्योंकि सेल टैक्स की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, इसने सेल टैक्स लगा दिया। इसने एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं लगाई? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी की 3 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। अब तीनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी इस केस में? इस केस में मैन्युफैक्चरिंग वाली कंडीशन इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड बाय द होलसेलर, therefore excise duty is not applicable, sale tax is applicable. Retailer will pay 44,000 rupees. Out of these 44,000 rupees, 4,000 will be paid to the sales tax department. Now comes out to retailer. Retailer के लिए हम चेक करते हैं क्या ये रिटेलर सेल्स टैक्स लगाएगा या नहीं लगाएगा। यस, ये रिटेलर भी सेल्स टैक्स लगाएगा क्योंकि रिटेलर ने गुड्स को सेल किया है इंडिया में, इसलिए 5,000 रुपीज़ का सेल टैक्स लगाएगा और आउट ऑफ दिस 55,000 कंज्यूमर पे करेगा इसको। आउट ऑफ दिस 55,000 रुपीज़ रिटेलर विल रिटेन 50,000 रुपीज़ एंड विल पे 5,000 रुपीज़ टू द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। Therefore in all these situations what we have seen till now about excise duty and sales tax, हमने सिर्फ एक चीज चेक करी है अब तक। वो चीज चेक करी है कि कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ ऑल द टैक्सेस। अगर वो इंपॉर्टेंट कंडीशन किसी भी पर्टिकुलर केस में सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो टैक्स अप्लाई हो जाता है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो वो टैक्स अप्लाई नहीं होता है। Therefore excise duty, sales tax, excise duty, sales tax, excise duty, sales tax. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था।
हमने देखा था कि व्हेन सेल टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन रुपीज 27,500, when sale tax is applicable on 27,500 and this 27,500 is included in this 40,000 rupees. 27,500 is included in this 40,000 rupees. अगर कंप्लीट 40,000 रुपीज पे सेल टैक्स लग जाता है, इट अमाउंट्स टू डबल टैक्सेशन. Double taxation means when sale tax has already been paid on 27,000 rupees, if sale tax is now also applicable on 40,000 rupees, then it is being doubly taxed on the income of rupees 27,500. Therefore, अगर होलसेलर को टैक्स लगाना चाहिए तो कितनी अमाउंट पे लगाना चाहिए, उसे इनके डिफरेंस पे लगाना चाहिए. डिफरेंस इनका कितना आता है, डिफरेंस है इनका 12,500 रुपीज़ का. अब 12,500 रुपीज़ पे जो सेल टैक्स आना चाहिए वो सेल टैक्स 1250 रुपये का आना चाहिए. अब इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हुआ है, जिस कॉन्सेप्ट को हम कॉमनली बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द टैक्स क्रेडिट ऑफ द टैक्सेस पेड अर्लियर. देयरफॉर जब ये होलसेलर 4,000 रुपीज पे कराने जाएगा तो 4,000 रुपीज में से इट विल टेक द ITC ऑफ रुपीज 2750 and will pay in cash 1250. Therefore, when it has paid 1250 in cash, अब गवर्नमेंट को कैश कितना मिला, गवर्नमेंट को 2750 यहाँ कैश मिला और गवर्नमेंट को 1250 यहाँ कैश मिला. देयरफॉर पूरी दोनों सिचुएशन में गवर्नमेंट को कैश 4,000 रुपीज मिला है. देयरफॉर सेल टैक्स डज नॉट लीड टू डबल टैक्स, इसलिए इसका नाम काट के भी वैट कर दिया गया था. ये हमने डिस्कस किया था. नाउ इफ क्वेश्चन कम्स वेदर सेल्स टैक्स इज अ वैट, then how would you answer this question? Whether sales tax is a VAT or not? क्या सेल टैक्स वैट है? नॉर्मली जो आंसर आता है वो आंसर आता है नो, सेल्स टैक्स इज नॉट अ वैट. सेल्स टैक्स इज सेपरेट एंड वैट इज सेपरेट. बट इफ वी सी द concept of VAT, if we see the concept of VAT, then we'll come to know that VAT is only a mechanism. VAT is only a mechanism and VAT stands for value added tax. Now if we see our situation, क्या सेल टैक्स जो LG ने लगाया था, LG ने 25,000 का प्रोडक्ट सेल करके LG ने उस प्रोडक्ट को होलसेलर को सेल किया था एंड होलसेलर हैज सोल्ड दिस प्रोडक्ट फॉर रुपीज 40,000 का सेल किया. अब होलसेलर ने वैल्यू एडिशन कितनी करी थी, होलसेलर ने वैल्यू एडिशन की थी 12,500 रुपीज की. अब ये 12,500 रुपीज की वैल्यू एडिशन कैसे आई, ये 12,500 रुपीज की वैल्यू एडिशन कैसे आई, 25,000 का परचेज करके उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी 12,500 की. टोटल अमाउंट कम्स आउट टू रुपीज 27,500. 25,000 पर 2,500 की एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद 27,700 की वैल्यू आई और हमने उसको सेल कर दिया था. आप इस सिचुएशन में देखो, इस सिचुएशन में 27,500 की वैल्यू के बाद हमने इसको सेल किया था 40,000 का. देयरफॉर 12,500 की वैल्यू एडिशन आई, इस पर 1250 का सेल टैक्स अप्लाई हो गया. इसलिए क्या सेल टैक्स वैट है? यस, सेल टैक्स ही तो लगा ही है 1250 का, but it is on the basis of the concept of value added tax. Therefore sale tax is commonly known as value added tax. अगर हम बात करें रिटेलर की, तो रिटेलर को क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा 4,000 रुपीज का? Yes, retailer will get the input tax credit of rupees 4,000 and it will pay the tax as follows. It will pay 5,000 minus ITC of rupees 4,000. Total amount comes out to rupees 1,000 rupees. Therefore पूरे केस में गवर्नमेंट को 2,750 रुपये का सेल टैक्स यहाँ पे हुआ, 1250 का यहाँ पे हुआ, 1000 का यहाँ पे हुआ, टोटल
2750 plus 1250 plus 1000 comes out to rupees 5000. Therefore 50,000 का प्रोडक्ट बिक रहा है, इस पर 5000 गवर्नमेंट को पे होना चाहिए, एंड इन दिस कंप्लीट सीरीज वी हैव पेड रुपीज 5000 ओनली. Therefore if we conclude this series, we can conclude that all the taxes are applicable when the important conditions are satisfied. We have not to see any other aspect, only what we have to do is we have to see the important conditions. Now if we move towards income tax, in this situation, in the case of manufacturer, you have to tell whether this manufacturer is required to pay income tax or not. This manufacturer is required to pay income tax or not. क्या मैन्युफैक्चरर को इनकम टैक्स पे करना है? अब आप बताओ सारे, क्या मैन्युफैक्चरर को इनकम टैक्स पे करना है? अब इनकम टैक्स के बारे में अगर हमें नहीं भी पता तो भी क्या हम इस कंडीशन का आंसर देने के लिए अगर हम 3 कंडीशन पढ़ के बता दें, क्या हम इसका आंसर दे देंगे? Yes, we can give the answer whether income tax is applicable or not. So tell the first condition whether the manufacturer has earned a total income of or not. Yes, total income कमाई, कितने कमाई इनकम, 25,000 की इनकम कमाई या 10,000 की इनकम कमाई या 15,000 की इनकम कमाई. जो मैन्युफैक्चरर ने इनकम कमाई है वो इनकम है 10,000 रुपीज की. देयरफॉर टोटल इनकम हो गई. सेकंड कंडीशन, पर्सन, क्या एलजी पर्सन है? पर्सन जनरली हम समझते हैं पर्सन इज एन इंडिविजुअल, वी आर द पर्सन, बट पर्सन हैज अ वेरी वाइडर मीनिंग. एवरी इंडिविजुअल, एवरी कंपनी, एवरी फर्म, every AOP BOI, every HUF is a person. Therefore LG Electronics being a company, it has satisfied the second condition also. Third condition is previous year. Previous year is main year only. Previous year is main year only. Therefore in this year manufacturer has earned an income of rupees 10,000. Therefore it has to pay income tax on 10,000 rupees. Let's suppose the rate of income tax being 30%. It has to pay 33,000 as income tax. Now in this situation what types of taxes are applicable? Income tax is applicable on the profit portion of manufacturer. Excise duty is applicable because LG ने AC manufacture किया है. Sale tax is applicable because LG ने AC sale किया है. In this case wholesaler has not charged excise duty because wholesaler has not manufactured this product. Wholesaler has charged sale tax because it has sold this product. Retailer has not charged excise duty because it has not manufactured this product. Retailer has charged sale tax because it has sold this product. So we have to see the important conditions only, and after that we have to give the answer in every particular case. Now this concept we did last time. हमने important conditions check करी थी, सबकी important conditions क्या होती हैं, और हमने उन important conditions का अभी एक example भी देख लिया है. What we have to do is we have to see the important conditions. Preview.